Good morning, friends. Today we are going to discuss about composition and structure of atmosphere. Our lecture will be both in English as well as Hindi so that all the type of students or all of us can understand in an easy and simple manner. Okay? So, first of all the question comes what the atmosphere is. Atmosphere है क्या? Atmosphere is nothing but the blanket of air that surrounds the earth. It means वो ज़्यादा कुछ नहीं, सिर्फ एक एयर की एक चादर सी बनी हुई है हमारे जो अर्थ के अराउंड में, उसी को हम एटमॉस्फेयर कहते हैं. तो क्वेश्चन उठता है कि हमारी अर्थ किन किन चीज़ों से मिलकर बनी हुई है या क्या क्या उसको सराउंड किए हुए है. तो हमारी अर्थ को मेनली हमने 3 डोमेन्स में कैटेगराइज किया हुआ है. फर्स्ट इज लिथोस्फीयर, second is atmosphere which we are going to study about, and third one is hydrosphere. So what is lithosphere? Lithosphere हमारी ज़मीन है, मिट्टी, कंकड़, जो भी कुछ जिन सब से हमारा अर्थ का क्रस्ट बना हुआ है, क्रस्ट, मेंटल, कोर, इन सब को मिला के हम लिथोस्फीयर कहते हैं. सेकेंड कम्स अवर एटमॉस्फेयर. एटमॉस्फेयर वो एयर है जो हमारी अर्थ को सराउंड किए हुए है. एंड थर्ड थिंग इज हाइड्रोस्फीयर. हाइड्रो मीन्स वाटर. सो जितना भी पोर्शन हमारा अर्थ का वाटर से कवर्ड है, दैट इज ऑल नोन एज हाइड्रोस्फीयर, बिकॉज वी नो दैट आवर अर्थ इज 70% इज वाटर. सो हमने अर्थ को 3 पोर्शंस में मेनली डिवाइड कर दिया है. नाउ जो हमारा अर्थ का ये तीनों डोमेन्स हैं, तीनों डोमेन्स मीन्स लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर एंड हाइड्रोस्फीयर. All these domains interact with each other, and in a single term these are known as biosphere. Bio means life, which we have already studied many a times. Biosphere means where a life can survive, because in this environment only we as human beings or animals or plants can survive and their life is possible. Okay, this atmosphere which is surrounding the earth is in gaseous state, and oxygen is present, which is present in this atmosphere, is very essential for sustaining life or sustaining elements present on the earth. Now the question comes, what the atmosphere is composed of. So the atmosphere is composed of many types of gases. Gases like nitrogen, oxygen, carbon dioxide, carbon monoxide, argon, helium, hydrogen, krypton, methane, etc. etc. And there are some solid particles also which are mixed up in the air, and they form the composition of atmosphere. So the main composition of atmosphere is nitrogen and oxygen. These are the 2 gases which are majorly present in the atmosphere. As you can see from the figure displayed, nitrogen makes up to approx 78% of the total volume of the atmosphere, and oxygen makes almost 20 to 21% of the atmosphere. So why is nitrogen and oxygen so much essential that these are found in atmosphere in so large amounts? The main thing is plants cannot directly take the nitrogen from the atmosphere. So what some bacteria do is they remain in the roots of the plants and they transform this nitrogen into a form which can be consumed by the plants, and hence in that way these plants take up the nitrogen from the atmosphere. Now second thing is oxygen. As we all know, oxygen is the second most available gas in the air, and due to this air we can survive. We as a living beings or animals, the possibility of all the life on the earth is due to the oxygen present on the earth. Third gas is argon. Argon is also necessary so as to maintain a balance between all the gases. There is carbon dioxide, which is very essential for plants. So similarly, there are different types of gases in different
composition which are present in the atmosphere, and some gases are found in minute traces also, while others are in heavy amount. There is dust also. There are some cloud and precipitation which is formed during the rain. There is absorption of heat and energy from the sun by this atmosphere, and the water vapor is added to the atmosphere with the process which is known as evaporation and transpiration from plants. All the forms of precipitation are caused by water vapor. वाटर वेपर से ही सारा प्रेसिपिटेशन जो हमारी पृथ्वी पर होता है, जो रेन के फॉर्म में जो हमारा पानी पृथ्वी पर आता है, दैट इज ऑल ड्यू टू दिस इवेपोरेशन एंड ट्रांसपिरेशन. बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं जैसे कि डस्ट, पोलिन, ऐश, जो कि प्रोड्यूस किए जाते हैं मीटेरॉइड से, और स्मोक भी प्रेजेंट होता है एटमॉस्फेयर में. नाउ कमिंग ओवर टू द फंक्शन ऑफ एटमॉस्फेयर्स. फंक्शंस क्या क्या है एटमॉस्फेयर के? एटमॉस्फेयर इज़ वन ऑफ द मोस्ट एसेंशियल एलिमेंट, बहुत ज़रूरी एलिमेंट है, क्योंकि ये ही पॉसिबल करता है लाइफ को अर्थ पर. सेकेंड थिंग, वाटर वेपर इन द एटमॉस्फेयर कॉजेस प्रेसिपिटेशन ऑन द अर्थ. वाटर वेपर क्यों ज़रूरी है? क्योंकि उसी के कारण प्रेसिपिटेशन होता है अर्थ पर, जिसकी वजह से रेन होता है. थर्ड थिंग, while oxygen present in the atmosphere is the life-giving gas on the earth, carbon dioxide absorbs heat and keeps the earth warm during the nights. अगर कार्बन डाइऑक्साइड ना हो तो हमारी अर्थ पर ग्रीन हाउस इफेक्ट ही नहीं होगा, हमारी अर्थ गर्म ही नहीं हो पाएगी, मतलब उस हीट को वो एब्जॉर्ब नहीं रख पाएगी काफ़ी टाइम के लिए, और हमारी पृथ्वी भी फिर ठंडी हो जाएगी रात के टाइम बहुत ईजीली, और सुबह के टाइम भी इतना ज़्यादा गर्म नहीं हो पाएगी. तो कार्बन डाइऑक्साइड इज़ ऑल्सो एसेंशियल एंड इट इज़ ऑल्सो अ टाइप ऑफ लाइफ गिविंग गैस ओवर द अर्थ. सो atmosphere forms a blanket and shields the earth from harmful radiations also from the sun. Now coming over to the structure of atmosphere. Atmosphere is not that कि वो सारा का सारा बिल्कुल एक सा है नीचे से लेके ऊपर तक. It is not like that. उसमें भी कई लेयर्स हैं. एटमॉस्फेयर लेयर्स के फॉर्म में डिवाइडेड है फ्रॉम नियर द अर्थ टू एक्सटर्नल सरफेस. There are different type of surfaces. We will study this in next things. पहले हम पढ़ते हैं कि एटमॉस्फेयर को हमने डिफरेंट लेयर्स में डिवाइड किया है. क्यों डिवाइड किया है? मेनली हमने एटमॉस्फेयर को 5 डिफरेंट लेयर्स में डिवाइड किया है. क्यों? क्योंकि वो यूनिफॉर्म नहीं है. जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे पृथ्वी से, जैसे जैसे ऑल्टीट्यूड चेंज होगा, वैसे वैसे उसके अराउंड जो गैसेस हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ भी चेंज होती हैं. क्यों चेंज होती हैं प्रॉपर्टीज़? कोई गैस, 2 रीज़न है मेनली उसके. एक तो एयर प्रेशर, जो प्रेशर होता है वो जो हमारी अर्थ होती है उसके पास में प्रेशर ज़्यादा होता है. जैसे जैसे हम अर्थ से ऊपर जाते जाएंगे, एज वी गो अबव, अर्थ का जो प्रेशर है वो कम होता जाएगा. सेकेंड थिंग, एयर का टेम्परेचर. एयर का टेम्परेचर भी पृथ्वी के पास में ज़्यादा होता है, लेकिन डिफरेंट लेयर्स पे ऐसा नहीं है कि टेम्परेचर कम ही होता जाएगा. इट ऑल्सो इंक्रीजेज देन डिक्रीजेज इन सर्टेन लेयर्स विच वी विल डिस्कस लेटर. इसीलिए इन 2 मेनली वजहों से हमने अपने एटमॉस्फेयर के लेयर्स को 5 डिफरेंट लेयर्स में डिवाइड किया है. अब हम इन लेयर्स पे को इंडिविजुअली देखते हैं. पहले हम इनकी नेमिंग देख लेते हैं कि कौन कौन सी लेयर्स हैं हमारी अर्थ के ऊपर. फर्स्ट ऑफ ऑल, जो पृथ्वी के सबसे पास में जो लेयर है उसको हम बोलते हैं ट्रोपोस्फियर. सेकेंड लेयर इज स्ट्रेटोस्फियर. थर्ड लेयर इज मेसोस्फियर. फोर्थ लेयर इज थर्मोस्फियर एंड फिफ्थ लेयर इज एक्सोस्फियर. ओके, नाउ कमिंग ओवर टू ट्रोपोस्फियर. ट्रोपोस्फियर क्या है? ट्रोपोस्फियर सबसे इम्पॉर्टेंट लेयर है एटमॉस्फेयर की. क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि हम उसमें रहते हैं, लाइफ उसमें सरवाइव करती है ट्रोपोस्फियर में. सबसे नीचे वाली लेयर है और सबसे पतली लेयर है. ये एक्सटेंड करती है 12 से लेके 20 किलोमीटर तक.
कुछ बुक्स में 13 किलोमीटर भी लिखा हुआ है, कुछ बुक्स में 18 किलोमीटर भी लिखा हुआ है. एंड इट फ्लक्चुएट्स फॉर सेंटर एंड पोल्स. पोल्स पे वो सिर्फ 8 to 10 किलोमीटर्स तक रहती है, वाइल मॉडरेट लेटीट्यूड्स यानी सेंटर के आसपास वो 10 to 12 किलोमीटर्स या उससे भी थोड़ा बहुत ज़्यादा तक भी रहती है, क्योंकि सेंटर में हमारा प्रेशर जो अर्थ का है वो अलग होता है और पोल्स पर अलग होता है. जो 90% एटमॉस्फेरिक मास है, एटमॉस्फेरिक मास मीन्स जो एटमॉस्फेयर का वेट है, मास है, वो किस पे डिपेंड करता है? ट्रोपोस्फियर पे. टेम्परेचर जो है जैसे जैसे हम अबव जाते जाते हैं वैसे वैसे टेम्परेचर डिक्रीज होता जाता है. कौन सी लेयर में? ट्रोपोस्फियर में. जस्ट रिमेंबर दिस, द टेम्परेचर डिक्रीजेज इन दिस लेयर विद द इंक्रीज इन हाइट. जैसे जैसे हमारी हाइट इंक्रीज होगी वैसे वैसे टेम्परेचर डिक्रीज होगा. ऑक्सीजन भी डिक्रीज होगी, क्योंकि हम इस लेयर में ही ऑक्सीजन की हम किस लेयर में मिलती है हमको ऑक्सीजन? इसी लेयर में, ट्रोपोस्फियर में. जितने भी वेदर फिनोमिना हैं, वेदर फिनोमिना एज इन रेन, हेल, फॉग, क्लाउड्स, ये सारे के सारे इसी ट्रोपोस्फियर के ही पार्ट हैं. ये सारे के सारे सिर्फ इसी लेयर में होते हैं. और हमारी जो इस लेयर की जो अपर लिमिट है उसको हम क्या कहते हैं? ट्रोपोपॉज. पॉज मीन्स स्टॉप एंड ट्रोपो कम्स फ्रॉम द लेयर. तो ट्रोपो का पॉज, ट्रोपोस्फियर का पॉज कहाँ हो जाता है? उसको हम कहते हैं ट्रोपोपॉज. एंड टेम्परेचर में बी as low as approx -58 degree centigrade at this level. यानी कि हम यहाँ जो पृथ्वी पर हम रह रहे हैं यहाँ पर हमारा टेम्परेचर 58 भी रहता है, 18 भी रहता है, कहीं कहीं पे माइनस में भी है. बट जब हम ट्रोपोपॉज पे गए तो टेम्परेचर कितना हुआ? -58 डिग्री सेंटीग्रेड. यानी कि हमारा जो टेम्परेचर है वो बहुत कम हो गया. नाउ coming over to the second layer. What is our second layer? That is stratosphere. As you can see in this picture, stratosphere, here you can see above it is written ultraviolet radiation which comes from the sun. This is our stratosphere. Here see, here it is written, this is earth surface at the below. Above that there is troposphere. There is little line going off tropopause. Then there is stratosphere, a major layer stratosphere. Over the stratosphere you can see a little layer of ozone, which is very necessary. Why? Because it stops or it avoids the harmful radiations of sun. That is ultraviolet rays of sun. Now, coming over to the discussion of stratosphere. This layer of the atmosphere, it lies above the tropopause, that is above the troposphere, and it extends to the height of approx 50 km from troposphere. Okay. Aeroplane also flies in which layer? They fly in stratosphere, because this layer is free from clouds and other weather phenomenon as well. Weather phenomenon which we discussed earlier, like rain, precipitation, etc. This layer is also free from water vapor and dust particles. So this makes it easy for aeroplane to fly. Now the stratosphere, as we have already discussed a bit moments earlier, it contains a layer of ozone gas which protects us from harmful radiations of sun. In the higher levels of atmosphere of stratosphere, the temperature increases with the height because of the absorption of ultraviolet radiations of sun by the ozone layer. So, what we have studied in troposphere, that the temperature decreases with the increase of height, while in this layer, stratosphere, temperature increases with the increase of height. Remember, these two are opposites in terms of temperature.
why the temperature increases in this? Because of ultraviolet radiations absorbed by the ozone layer, which increases the temperature. Now, the upper boundary of the stratosphere is also known as stratopause. Stratosphere, from stratosphere comes strato, and pause means stop. So, it comes stratopause. Now, coming over to the third layer of atmosphere, that is mesosphere, which lies just above the stratosphere up to a height of 80 kilometer. How much kilometer? 80 kilometer. Here the gases are not that much dense as were in the case of troposphere or stratosphere. It is the layer where meteoroids burn. Means if any meteoroid around the earth enters in this atmosphere, it will burn. Once they enter in the atmosphere of the earth. It is the upper layer of the mesosphere, the upper layer of the mesosphere is known as menopause, and temperature also decreases as the altitude increases. As we go up in this layer, temperature decreases again to minus 100 degrees centigrade. Okay. Now, coming over to the fourth layer, that is thermosphere. This thermosphere is also known as ionosphere. Which layer? Ionosphere. This layer extends from 80 kilometer to 400 kilometer, and the temperature increases drastically in this layer and can go up to 1480 degrees centigrade or approx 1500 degrees centigrade. It is because the molecules in this layer absorbs the sun's ultraviolet rays, and if ultraviolet rays will be absorbed, then obviously temperature will increase, as was done with stratosphere. So it readily absorbs solar radiation, which increases its temperature to 1500 degrees centigrade. And this is the layer which reflects radio waves, which makes it possible to run our radios at FMs. It is because of this layer due to which we can hear our FMs and alls. So, now ionosphere. Ionosphere is found at the bottom of the thermosphere, which is close to the mesosphere, and ionopause is present between ionosphere and exosphere. Which is ionosphere? Ionosphere is thermosphere is ionosphere. Okay. The layer which we were studying just now, this is thermosphere, and it is also termed as ionosphere. Now coming over to the exosphere. Exosphere begins at about 500 kilometers above the earth, and it does not have any स्पेसिफिक आउटर लिमिट. उसकी कोई लिमिट नहीं है कि उसके बाद यहाँ से यहाँ तक. जैसे बाकी लेयर्स में हमने पढ़ा 80 किलोमीटर्स तक, कोई 500 किलोमीटर्स तक, कोई उसके ऊपर तक, पर इस वाली लेयर की कोई लिमिट नहीं है. क्यों? क्योंकि ये लास्ट लेयर है. इट गोज़ ऑन. कहीं पर ज़्यादा है, कहीं पर कम है. और जो सैटेलाइट्स होती हैं ऑर्बिट की हमारी अर्थ में, वो भी इसी लेयर में घूमती हैं. यही हमारी अपर मोस्ट लेयर है अर्थ की, और बहुत ही थिन लेयर है ये. बहुत लाइट सी गैसेस हैं लाइक हीलियम एंड हाइड्रोजन, जो कि स्पेस में हैं, वही हमारी अर्थ के इस लेयर में सर्कुलेट करती रहती हैं. क्यों क्योंकि इस लेयर में सबसे लाइट वेटेड गैसेस हैं, क्योंकि यहाँ तक जाते जाते हमारी अर्थ की ग्रेविटी काफ़ी कम हो जाती है दूसरी गैसेस को अट्रैक्ट करके रखने के लिए. बट एज दीज आर लाइट वेटेड गैसेस, तो इसलिए ये हमारी उस ग्रेविटी को, उस अर्थ की ग्रेविटी में भी अट्रैक्टेड रहती हैं टुवर्ड्स द अर्थ, और लास्ट लेयर में यही कंपोज्ड रहती हैं. फिर भी अगर हम एक लिमिट लें अप्रॉक्स तो 500 से 960 किलोमीटर्स तक हम अर्थ के मान सकते हैं कि हमारा एग्जॉस्फियर है. इस लेयर में भी टेम्परेचर इंक्रीज होता है. रिमेंबर, टेम्परेचर इंक्रीज होता है, और टेम्परेचर मतलब बहुत ज़्यादा ही हो सकता है इसमें. टेम्परेचर लाइक 5500 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर जा सकता है इसमें. ठीक है. अब अगर हम इसमें टेम्परेचर का ग्राफ देखते हैं तो कैसा बनेगा. ट्रोपोस्फियर में टेम्परेचर हमारा 0 से लेके 18 से लेके 30 से लेके हमारा 150 तक हो सकता है टेम्परेचर.
अगेन स्ट्रेटोस्फियर में टेम्परेचर हाइट के साथ में बढ़ता जाता है. एज यू कैन सी इन स्ट्रेटोस्फियर, वहाँ ओजोन लेयर लिखा हुआ है, सी प्लीज़. और यहाँ पे हमारा टेम्परेचर धीमे धीमे करके एक्सपोनेंशियली बढ़ रहा है. नाउ अगेन स्ट्रेटोपोज में हमारा यहाँ पे टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ा और यहाँ पे आयनोस्फीयर में हमारा टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है. नाउ एज यू कैन सी, अगर हम एक स्मॉल वे में देखें कि हमारे डिफरेंट एटमॉस्फेयर के जो लेयर्स हैं उनमें क्या क्या फंक्शंस हो रहे हैं. सबसे पहले ट्रोपोस्फियर में क्या होते हैं, हमारे वेदर कंडीशंस होते हैं. क्या होते हैं, वेदर कंडीशंस. वेदर मतलब कि एक स्टेट है एटमॉस्फेयर का जो कि एक सिंपल छोटे से गिवन एरिया, छोटा या एक मतलब थोड़ा सा गिवन एरिया में शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए है, उसको हम कहते हैं वेदर. और क्लाइमेट्स भी इसी में होते हैं. लेकिन क्लाइमेट्स हम किसके लिए कंसिडर करते हैं, लार्ज एरिया के लिए और लार्ज टाइम के लिए. ठीक है, तो वेदर और क्लाइमेट जैसे जो फंक्शंस होते हैं वो कौन सी लेयर में होते हैं, ट्रोपोस्फियर में. जो हमारे प्लेन्स उड़ते हैं वो किस लेयर में है, स्ट्रेटोस्फियर में. ओजोन लेयर किस लेयर में है, स्ट्रेटोस्फियर में. मीटेरॉइड्स किस लेयर में होंगे हमारे, या एस्ट्रॉइड्स किस लेयर में होंगे, मेसोस्फियर में. शटल्स उड़ते हैं हमारे, या फिर क्राफ्ट्स उड़ते हैं, या सैटेलाइट्स रहती हैं, वो सब किस लेयर में है, थर्मोस्फियर में या आयनोस्फियर में. एंड द लास्ट लेयर इज एक्सोस्फियर, जिसमें कि हमारे रेडिएशंस थोड़े एब्जॉर्ब भी होते हैं और हमारी सैटेलाइट्स भी रहती हैं उस लेयर में. नाउ अब फंक्शंस क्या क्या हैं एटमॉस्फेयर के. पहली बात, सारी तरीके के लाइफ फॉर्म्स को डिफरेंट डेंजरस सन रेज से बचाना, सनलाइट को आने देना. ड्रास्टिक जो टेम्परेचर वेरिएशंस होंगे अर्थ पर अगर एटमॉस्फेयर नहीं होगा, क्योंकि सन आएगा एकदम से टेम्परेचर बढ़ जाएगा. हमारी पृथ्वी घूमी, सन गया तो हमारी पृथ्वी एकदम से ठंडी होगी. तो इन सारे डिफरेंट रेडिएशंस को प्रोटेक्शन के लिए एटमॉस्फेयर इज़ वेरी वेरी नेसेसरी. एनर्जी के और वाटर वेपर के ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी एटमॉस्फेयर सबसे ज़्यादा हेल्पफुल है. कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन जो कि प्लांट्स के लिए बहुत ज़रूरी हैं, एंड ऑक्सीजन जो कि एनिमल्स के लिए बहुत ज़रूरी है, दिस इज़ फाउंड ओनली इन एटमॉस्फेयर. और जो मेट्यूरॉइड्स होते हैं उनसे हमारे पृथ्वी को बचाने के लिए, अर्थ को सेव करने के लिए व्हाट इज़ नेसेसरी अभी हमने देखा ना, मेसोस्फियर. तो दीज आर द फंक्शंस ऑफ एटमॉस्फेयर. इन नेक्स्ट स्लाइड we will study about ozone and global warming, and we will also discuss about the exercise. Thank you.